The Case of the Candy Bandit by Archit Taneja. The superlative superlutes, Aarti and I, decided to skip PT class to catch Spark while it was committing the crime and convince ourselves, mainly Aarti, that we were right. We pretended to be combined sick. Divya came up to us and asked suspiciously, Rachita, Aarti, how did you both get sick at the same time? Aarti rolled her eyes like she always does when someone says something naive. She always rolls her eyes the moment Divya opens her mouth. It's possible for best friends to get sick at the same time. It's viral fever. If one gets sick, the other one does too. It's like chicken pox. Divya warned Aarti not to touch her sweets and left for the PT class with the other girls. Ayush came up to us and insisted that we come too. Aarti, I'll make sure the guys pass you the ball. He sniggered. We aren't feeling well at all. We will do our homework. I said. Should I stay with you guys? In case you get more sick or something? I can do homework with you too. It's fine, Ayush. We can take care of ourselves. Miss Shalini won't like it if too many kids are absent. Besides, we don't want you to get sick too. Aarti said. Ayush tried to come up with some reason to stay, but couldn't manage anything. He decided to leave, muttering something faintly as he left the classroom. But I wasn't able to catch it. Aarti was angry. She made a loud pluck noise with her tongue, staring at him. Ayush noticed it, looked at her, sighed, and left. Why are you so angry all of a sudden? I asked. I'm angry because I'm sure now that Ayush is behind it. Huh? How? Shh, I'll tell you later. Spark might come out any moment now. Aarti whispered. We were the only ones in the class now. We sat at a desk next to the center of the crime scene. Aarti sniffed around and insisted that we sit at another desk further away, to prevent the thief from smelling our presence. I did what she said. The smelling department was completely hers. Just as we were sitting down, Aarti whispered, Look at Ayush's bag. And there it was. There was our little fluffy thief. It went off to Aarti's bag. It grabbed the treat packet with toffees in it, holding one end in its mouth. Aarti couldn't control her excitement. Oh, Spark, you are so adorable. Take as many toffees as you want, baby. She whispered, as if talking to a little baby. I had to shh Aarti down. Spark realized that it wasn't alone. It ran with the toffee back to Ayush's bag. Keep your mouth shut, Aarti. Spark will figure out we are here. I whispered to her in an angry voice. Aarti looked at me right in the eye. Sorry. Please don't be so loud. I said again, nicely. That's more polite. Aarti smiled and turned back to Ayush's bag, hoping Spark would come out again. Spark finally took a peek outside. It went to Arjun's bag this time. Arjun had got a cupcake made by his grandma. Spark was in Arjun's bag for a while. It finally came out and slowly dragged the heavy packet back towards Ayush's bag. Spark decided to take a break. It stopped somewhere close to the center of crime. It snuggled into the treat pack and spent a while inside it, moving a lot. It came out with little cupcake pieces stuck on its whiskers. It seemed more upbeat now. It had clearly been eating the cupcake. It then slowly dragged the treat pack back into the bag. It came out again and headed towards my bag. I had got a banana today. It came out quickly without anything and rushed into another bag close by. We saw it drag a treat packet with a chocolate bar inside it.
At one point, it tried to dig inside the treat packet and tear through the chocolate wrapper, but it gave up and continued with the task of slowly dragging the treat packet back to Ayush's bag. After that, Spark didn't come out for the rest of the recess. The class was about to end. Aarti and I looked at each other and smiled. I took out the case file and plotted Spark's path. Spark must be finishing the rest of the cupcake now. Aarti giggled. What was that strange noise you made in front of Ayush? I asked Aarti. Ayush made that plock sound with his tongue when he left the classroom. It was the same sound he used while showing us Spark's tricks. I wanted him to know I'd heard it. Oh, I hardly heard it. I knew Aarti had a sharp nose. I didn't know she had a sharp ear too. Why did he make that sound, though? Aarti wondered. Maybe he wanted to warn Spark that the classroom wasn't empty. He didn't train him well enough after all. We saw it commit the crime, said Aarti, raising a victory fist in the air. So you are convinced now? I asked. Sure am, me mate. Aarti winked. Divya entered the class, followed by Arjun and Vipul. The classroom started to fill up. Ayush was one of the last ones to come. The first thing he did was to search for us. He looked at us in fear and despair. He walked to his desk and checked the contents of his bag. He sighed and tried hard not to look at us for the rest of the class. Arjun screamed and made his usual horrified face when he found his cupcake wasn't there. Aarti pretended to search her bag and shouted out, Oh, my toffees are missing! Oh, the horror! I nudged her. Don't be overdramatic, Aarti. Act naturally. Oh, right. Aarti giggled. Has someone else lost their sweets? My chocolate bar is missing. Vipul said, scratching his head. I got an apple today. It's still there, said Ayush, acting disappointed. The only thing Ayush doesn't hate is candy. He loves candy so much that he is ready to steal it, and he's had the perfect accomplice to get away with it. Stealing is not cool, but making your pet rat steal for you is despicable. We were both quite angry with him. Spark isn't the thief. Ayush is. I feel so bad for Spark, Aarti cried out when we were alone. Yeah, Spark is just following his orders. There is no fun in solving a crime if no one gets punished in the end. We could make sure Ayush never got to see candy again. On the way back in the bus, a thought crossed my mind. Why do you think Spark didn't take the banana out of my bag? I asked Aarti. Because Ayush hates bananas. Aarti giggled. I think he's trained Spark not to steal fruits. Yeah, Ayush really does hate fruits. Aarti giggled some more. We both put ourselves in Ayush's shoes and thought about why he hated fruits so much and why he loved to steal candy. His parents always put fruits as his treats. I wouldn't like being treated with fruits all the time, I said. Yeah, imagine getting a guava after dinner. Aarti sighed. Maybe that's what forced him to do this, I said. Ayush did a bad thing, but we weren't sure whether he deserved the blame. If I were Ayush, I wouldn't have stolen candy, since my job is to prevent crimes. But I certainly would have tried to figure out some non-criminal way to get my hands on sweet stuff. Ayush isn't as bright as I am, so he may have not come up with clever ideas. Maybe there isn't anyone to be punished after all. अरे 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 भाई, मैं हिंदी में बता रही हूँ ना, इतनी जल्दी क्या है, सुनिए ना। चलिए हम चलते हैं। बहुत प्यारी स्टोरी है, द केस ऑफ अ कैंडी बंडिट। इसका मतलब है कि जो कैंडी की हमेशा चोरी करने वाला जो है ना, वो केस आज सॉल्व होने वाला है। यहाँ पे देखिए दो प्यारी बच्ची आरती और ये
राइटर। ये इन्होंने क्या किया है, स्पोर्ट्स के लिए सारे बच्चे बाहर चले गए हैं, लेकिन ये कुछ बहाना करके क्लास में ही बैठे रहते हैं। क्यों आज बैठे हैं पता है? क्योंकि उन्हें स्पार्क नाम का जो चूहा जो हमेशा चोरी करता है उसे पकड़ना है। ये क्या, ये दिव्या भी यहाँ पे आ गई है और ये बोल रही, रचिता, आरती, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम सच्ची में दोनों एक साथ कैसे बीमार पड़ सकते हो? तब दोनों ने गोल गोल आंखें घुमा घुमा के सोचा और देखा, और आरती जो है ना, वो उसकी बातें कर रहे हैं हम लोग, वो दिव्या को बोलती है, भाई देखो, जब फ्रेंडशिप ना बहुत पक्की होती है तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। वैसे हम दोनों को ना वायरल फीवर जितना भी कुछ भी होना है ना, बुखार है, सर्दी है, खांसी है, ये सब 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 एक साथ आ जाता है, तुमको पता है? एक्चुअली दिव्या जो है ना, दिव्या के बैग में स्वीट्स है, मतलब आप समझ सकते हैं ना, तो उसको उसकी चिंता है। और भाई ये क्या, आयुष भी आ गया। आयुष आरती को कहता है, आरती अगर तुम चाहती हो, नहीं भी चाहती हो, तो तुम लोग जो भी तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर तुम होमवर्क करोगे, कुछ ना कुछ करोगे, मैं यहाँ पे रुक जाऊँ क्या? मैं भी करूँगा, बराबर है ना? मुझे भी आज थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। आरती उसके नस नस से वाकिफ है। वो बोलती है, देखो मुझे पता है तुम लोग को तुझे खेलना नहीं है, और टीचर को जैसे ये पता चल जाएगा ना, टीचर बराबर तुम्हें कान पकड़ के लेके जाएगी, तभी तुम सुधरोगे। समझ में आ रहा है ना? उसे लग रहा है यहाँ पे बैठ के ये लड़की सर घुमा देगी, उससे बेटर है कि चलो बाहर चला जाए। आरती को बहुत गुस्सा आया उसे देख के, पता नहीं उसकी ना लाल लाल नाक हो जाती है उसको जब गुस्सा बहुत आता है तो। आयुष ने उसकी तरफ एक बार मुड़ के देखा और बाप रे, ये लड़कियाँ, ओह, फिर चला गया। तभी रचिता आरती से पूछती है, तुझे उससे देख के तब गुस्सा क्यों आता है? ये छोड़ दो भाई, क्या है, उसे देखिए क्या, किसी को देखिए क्या, हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं, उसके ऊपर कंसंट्रेशन करो। स्पार्क अभी वो जल्दी ही चोरी करने के लिए निकलेगा और हम उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। एक्चुअली उसे पकड़ना बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करता है वो देखना है। चलो अब एक दूसरे के इसमें से देखना शुरू कर देते हैं। ये स्पार्क जो है ये आयुष के बैग में से निकलेगा, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और देखने के बाद थोड़ा सा बोलते हैं कि देखो 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 देखो, आयुष के बैग में से कुछ तो निकला। अरे ये स्पार्क है, ये स्पार्क है, ये देखो बेचारा निकला बाहर। इसको ना ये आयुष ने बहुत अच्छे से सीखा। देखो देखो देखो, ये आरती की बैग की तरफ गया और वहाँ से देखो देखो इसने क्या किया, कैंडीज चॉकलेट देखो पूरी की पूरी। अरे बेचारे को उठाना भी नहीं हो रहा है। देखो ये स्पार्क पूरी की पूरी टॉफीज का पोटली का भरा ये बेबी। ओ या ये दोनों गर्ल्स एक दूसरे से बहुत धीरे धीरे बात कर रहे हैं, इतना धीरे बात कर रहे हैं कि वो चूहे को समझ में भी नहीं आएगा इतना। अब चूहा जो है ये पोटली जो है ये आयुष के बैग में डाल देता है। देखो तुम अब चुप ही रहो। और देखो उसको आवाज़ आ गया तो वो कुछ नहीं गया, बहुत एंग्रीली बोलती है। चलो दोनों के दोनों फिर से चुप हो जाते हैं और बोलना है लेकिन एकदम धीरे धीरे से बोलना है। और फिर वो जो आरती है वो बोलती है कि पोलाइटली बोलो यार, ऐसे मत बोलो। आयुष के बैग में अब वो डाल दिया है स्पार्क। ओफ, वो फिर से निकला। ये क्या, अर्जुन की बैग में घुस गया। अर्जुन की बैग में कपकेक रखा है। ओ उसकी ग्रैंडमा बनाती है। स्पार्क ने उसके अंदर घुस के वो कपकेक को भी बाहर निकाला है। ओ और ये क्या, वो आयुष की बैग की तरफ इसे ढकेल ढकेल के बीच बीच में वो खा भी रहा है। क्या क्राइम है, क्या क्या क्रिमिनल है। और ये सब सिखाने का काम करने वाला आयुष है। ठीक, क्या सिखाया, कैसे सिखा रहा है ये देखो कैसे छोटे छोटे टुकड़े पर पीसेस कर करके अंदर घुसता है, फिर निकालता है, फिर थोड़ा खाता है, फिर बाहर निकलता है, फिर से जाता है। ऐसे ये सब काम चालू है और सब चीज़ें वो बैग में, किसके, आयुष के बैग में ला के रख रहा है। अब ये क्या है, ओफो, ये रचिता की बैग में बनाना है। बनाना तो बिल्कुल पसंद नहीं है, वो निकला बाहर। और ये क्या है, ये चॉकलेट बार किसकी बैग है, किसी की तो बैग है, उसमें से चॉकलेट बार दिख रहा है। ओ हो, थोड़ा सा इसने खाया,
सूंघ रहा है, फिर थोड़ा टुकड़ा तोड़ा, फिर खाया, फिर ये आयुष के बैग की तरफ निकला और फिर से उसने वो पूरी की पूरी चॉकलेट का बार जो है ये आयुष के बैग में डाल दिया। आप देख सकते हैं उसके बाद में स्पार्क बिल्कुल भी निकला नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अब उसे पता चल गया है कि इतने टाइम में इसको इतना काम करना है। सबसे पहले उसने क्या किया, चॉकलेट की पोटली जो है वो उठाई, बराबर है। उसके बाद में कपकेक, उसके बाद में फिर मेरे इसमें बनाना था, इसे बनाना तो पसंद ही नहीं है इसलिए लिया नहीं। और बाद में ये देखिए क्या, चॉकलेट। आयुष की प्लानिंग ना सच में स्पार्क को क्या क्या कैसे कैसे ट्रिक सिखा के रखे। अब ये निकलेगा नहीं क्योंकि उसे पता है कि कोई भी टाइम में अब बेल बजेगी, बच्चे अंदर आ जाएंगे और ये पकड़ा जाएगा। इससे बेस्ट तरीका है कि अब जो है वो अंदर ही रहेगा, अंदर ही खाएगा और बाकी का बचा हुआ आयुष को मिल जाएगा। ये देखिए स्पार्क बेचारा, स्पार्क को बहुत वार्निंग देने के बाद, बहुत सिखाने के बाद ये सारी चीज़ें वो करता होगा। ऐसे क्या होता होगा कि स्पार्क इसके लिए इतना चोरी कर रहा है। एक चूहा जो है ना वो वहाँ पे ही बैठ के सब चीज़ें कुतरता है। अब उसके बैग में ला के रख रहा है, या इसका मतलब बैग जो है ये अब जहाँ देखिए यहाँ दिव्या ये सारे बच्चे क्लास में आ गए हैं। आने के बाद आयुष जो है ये सबसे लास्ट में आता है और लास्ट में आता है ये इधर उधर सब चीज़ें देख रहा है। सब लोग अपने अपने बैग खोल के अपना अपना चीज़ें देख रहा है। ये क्या है, ये लड़का अब देख रहा है कि बैग तो खुली है। अब सब लोग, अर्जुन जो है सबसे पहले, अर्जुन का चेहरा अब डरावना है, उसका कपकेक बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ये क्या, आरती भी अपने बैग में ढूंढने का नाटक कर रही है। उसे तो पता है कि उसके सारे के सारे टॉफी जो है ये किसने लिए है, तो ये स्पार्क ने लिए, उन लोगों को पता है लेकिन फिर भी वो प्रिटेंड कर रहे हैं। अब ये रचिता जो है ये उसे बोल रही है कि ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक मत हो। तब ये दोनों एक दूसरे को गुस्से से, ए विपुल देखो, विपुल भी चिल रहा है, मेरे चॉकलेट के बार किसी ने ले लिया। और ये क्या, आयुष बोलता है आज तो मैंने एप्पल लाया था, वो भी एक्चुअली आयुष ने कोई नहीं लाया है। एक्चुअली ये बात है कि आयुष को चॉकलेट बहुत पसंद है, वो चॉकलेट के लिए कुछ भी कर सकता है, इवन एक चूहे को भी वो ट्रेन कर सकता है। और ये सारी चीज़ें जो है जैसे फ्रूट हो गए, ये वाली चीज़ें उसे पसंद ही नहीं है, इसलिए बनाना, रचिता के बैग में जो बनाना है वो स्पार्क ने चोरी नहीं किया। देखिए कितना शातिर दिमाग है। शातिर दिमाग स्पार्क का नहीं है, आयुष का है, जो आयुष ने उसे वो सारी क्राइम करने के लिए मजबूर कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैंडी चोरी करने वाला जो हमेशा का बच्चा है वो कैसे है। अब देखिए, अगर इस टाइम में अगर टीचर ने बैग चेक किया आयुष का तो रंगी हाथ वो पकड़ा जाएगा। कौन? स्पार्क? नहीं, स्पार्क को तो ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन बैग में किसके है? आयुष के। तो ये सारी चीज़ें अब ये ढूंढ तो निकाला है। अब एक दिन, आज पहली बार इन्होंने देखा है कि ये सब बैग में रखता है। अब एक दिन हम टीचर को बताएंगे, दिखाएंगे कि ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें होती है और फिर ये पनिशमेंट उसे अच्छे से टीचर ही देंगे। तब तक उसे थोड़ा और लोगों को बेवकूफ़ बनाने दीजिए। स्पार्क को और थोड़ी सी चोरी सिखानी चाहिए। ये तो बहुत कम है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं और बोलते हैं एक दूसरे को। तब भी ये लड़की बोलती है कि अगर मैं चूहे का पालती थी तो ऐसी फालतू वाली चीज़ें नहीं सिखाती थी और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें उसे चोरी करना सिखाती थी। ये क्या, खाने के लिए चोरी करना? छी बाबा, ये तो मम्मी को मांग के भी हम खा सकते। उसके लिए बच्चों के बेचारे लोगों को, मतलब उनके मम्मी पापा कैसे तो देते होंगे उनको चॉकलेट, और वो भी यही चोरी कर लेते हैं। आयुष इतना बुद्धिमान भी नहीं है जितना बुद्धिमान उसे होना चाहिए था। और फिर ये लोग बोलते हैं कि वैसे बहुत सारी चीज़ें थी। तो आप भी कुछ मत कीजिए, ऐसे वीडियो देखते रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। धन्यवाद जी।